से लापता रहे एक व्यक्ति का सड़ा गला शव सालानपुर थाना के जेमेरी इलाके में जंगल में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार की रात काली पत्थर एनटीपीसी के पाइपलाइन के काशीडांगा जंगल की गहराई से एक बस्ते में बंधा लापता व्यक्ति 38 वर्षीय राजेश बावरी का शव मिला। हत्या के मामले में सालानपुर थाना की पुलिस ने 2 महिला समेत 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 25 जुलाई को अपनी गाड़ी लेकर राजेश बावरी अपने घर से निकला था और तब से घर वापस नहीं आया, जिसके बाद मृतक की पत्नी वंदना बावरी ने सालानपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को राजेश का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उसके परिजनों को संदेह हुआ और उसी के आधार पर पुलिस ने 2 महिला भादु बावरी, पदावती सोरेन समेत अमित बावरी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनसे काफी पूछताछ करने के बाद उन्होंने कबूल किया कि राजेश को लोहे के रड से पीट कर उसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद अपनी करतूत को छुपाने के लिए उन्होंने राजेश के शव को बस्ते में भरकर जंगल में मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था और तीनों आरोपी के दिशा निर्देश पर पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि शायद अतीत में किसी प्रेम प्रसंग को लेकर या फिर जमीन जायदाद पैसे को लेकर यह खूनी घटना घटी है। वहीं अपराधियों को पुलिस ने रिमांड में लेने के लिए अर्जी भी डाल दी है। যা পুলিশ বলছে সেটাই আমাদেরকে মানতে হবে। আর কি মানে পুলিশ বলছে যে এইভাবে যেভাবে পাওয়া গেছে, আমরা তো বলছি যে তদন্ত করুন যে কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে। আমরা তো জিনিসটা জানতে চাই না যে মার্ডারটা কিভাবে হয়েছে, কতজনা জড়িত আছে, ঠিক কি না। তো বড়বাবুকে সেটাই বললেন, তো বড়বাবু তো বলতে পারছে না। বড়বাবু বলছে এখন তো আমরা রিমান্ডে নেব, রিমান্ডে নেওয়ার পর হয়তো আরও হয়তো লোক আছে, কিংবা হয়তো এরা 3 জনে মিলে মেরেছে। এবারে রিমান্ডে যতক্ষণ না আমরা না নিই ততক্ষণ না মানে কিছু আমরা জানা যায় না। কি কারণে খুন হয়েছে সেটা জানা গেছে না, সেটা তো কিছু জানা যায় না। কেউ তো বলছে যে জমি জায়গা, কিংবা কেউ বলছে ভালোবাসা, এই হয়েছে কেস। কিন্তু সঠিক খবরটা আমরা পাই না। আর মেন ব্যাপার হয়েছে যে ওই মহিলাটার জমি জায়গা হয়তো বিক্রি হয়েছে না কি হয়েছে, 2 লাখ না 3 লাখ এমনি কিছু একটা টাকা পাওয়া গেছে। ও হয়তো লেডিসটাতে মাঝে মেয়েটাতে পেয়েছে, পাওয়ার পর মানে হয়তো ওই ঝামেলা হতে পারে। এদের ভালোবাসার কেস দাদা, ইয়ার বেশি কিছু মানে আর বলতে পারছি না। আজকে কোথায় পাওয়া গেছে বডিটা পাইপলাইন এনটিপিসি আলনাডি আছে, ওই কালীপাথর পাইপলাইন, সেখানে পাওয়া গেছে। আর চানকের মধ্যে বাইকটা আছে। ওই চানকে বড়বাবু বলছে যে আমরা অনেক কিছু করলাম, তুলতে পারলাম না, মানে অনেক ডিপ আছে। আমাদেরকে বললো ওইটা যে তোমাদের আগে সবকে কালকে হয়তো নিয়ে যাব, আর কীভাবে তুলতে হবে, কীভাবে কেউ যদি আছে তো ওইখান থেকে মানে কাটা ফাটা দিয়ে বাইকটাকে তুলে উঠাইতে হবে। নাম কি যার বডি উদ্ধার হয়েছে, নাম আর বয়স কত? রাজেশ বাবু। কত বছর বয়স তো? 38 এমনি হবে। কি অনুমান করছেন আপনারা, মানে এটা খুন করা হয়েছে? একদম 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 ওই তো 3 জন তো বলে দিয়েছি যে আমরা মেরেছি। এখন 2টো মহিলা আর একটা ওই অমিত বাউরি বলে যে আছে, 3 জন তো ধরা পড়ে গেছে। আমরা চাইছি যে যাদেরকে আটক করেছে তারা কি আপনার একই গ্রামেরই বাসিন্দা? না না, আমরা হলাম জিমারি, ওরা হলো ভাগরা। কি নাম আপনার? আমার নাম সঞ্জয় বাউরি। এটা আমরা 26 তারিখেই শুনেছিলাম। 26 তারিখে ঘটনাটা হয়ে মানে ওই মিসিং হয়ে গেছিলো, মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল, ওরা এসছিল। কালকে মনে হচ্ছে রাত্রিবেলা বডি পাওয়া গেছে। এদের উপরে এরাও শক করেছিল, যার উপরে ওই পুরো ঘটনাটা করেছে ওরাই। 3 জন আছে, 2 জন লেডিস, একটা জেন্টস মিলে। কিছু প্রবলেম আছে, আন্দোলনী প্রবলেমটা রিমান্ডে আসলে বোঝা যাবে কি আছে না আছে। ওরা মেরে দিয়েছে, মেরে পুঁতে দিয়েছিল কোথাও, আবার কালকে বডি পাওয়া গেছে। আপনারা কি জানতে পেরেছেন কোনো প্রেম ঘটিত কেস পুরনো ছিল? হতে পারে, এটা পুরনো ঘটনা হতে পারে, লেকিন পুরনো ঘটনাতে ভিত্তিতে কাউকে মারার কারো অধিকার নেই। মেরে দিয়েছে, এই জিনিসটা একদম বাজে করেছে। এটা মানে কেউ মানে করতে পারছে না, মানে বহুত দুঃখদ ঘটনা ওর পরিবারের জন্য, বাচ্চা আছে ওদের জন্য। আমরা আছি আমাদের তরফ থেকে, আমাদের বিধান উপাধ্যায়, মুকুল উপাধ্যায় যেরকম ইনস্ট্রাকশন দেবে ওদের পরিবারের জন্য আমরা আছি, দেখব, করব। বাড়ি থেকে বার হয় সন্ধ্যে 6টার সময়। তারপর সন্ধ্যে 6টা থেকে আমরা খবর নিই, মোটামুটি পুরো রাত পার হয়ে গেছে। ওর মা বলে যে আমাদের ছেলে বাড়িতে আসেনি। আমরা খোঁজাখুঁজি করি, খুঁজে পাই না। 26 তারিখে আমরা থানাকে এসে পরে বললাম যে এমনি ব্যাপার, 24 ঘন্টা না হলে তো এফআইআর হয় না, মিসিং ডায়েরি। 24 ঘন্টা পর এলাম, মিসিং ডায়েরি দিলাম। তারপর বললো যে ঠিক আছে আমরা দেখছি, খোঁজাখুঁজি করছে, আমরা খুঁজছি গোটাই। আমরা বললাম যে ফোনের ওর লোকেশন, যে ফোন বন্ধ আছে, একটা বাইক গিয়েছে, ফোনের লোকেশন কোথায় ছিল, লাস্ট কার সাথে কল হয়েছিল সেগুলা জানতে পারবেন আমরা প্রশাসন হয়ে।
বলে হ্যাঁ আজ এসে যাবে। দুদিন পরে এসেছি, দুদিন পরে আমাদের কিছু লোকেশন দেখিয়েছে, জিমারিতে লাস্ট লোকেশন ছেলেটার, আর কিছু ফোন নম্বর দিয়েছিল। সেই ফোন নম্বরগুলো আমরা দেখলাম, শেষ করে কিছু ফোন নম্বর বাড়ির বার হয়েছিল আত্মীয়, আর এক দুটো নাম্বার যারা এই মারাটাতে সামিল আছে করেছে, যারা কালকে ধরা পড়েছে, ওই ওদের নাম্বার বার হয়েছিল, তো কালকে ওদিকে রিমান্ডে নিয়েছিল। তারপর ওই রাত্রিবেলায় কালকে 3rd ডিগ্রি দিনকে না কী করছি জানি না, তারপর বলেছে যে লাস্ট কালকে রাতে বলছে 8:30 কি 12টা এমনি টাইমে লাস্ট এনেছে। এখন ওই দিনে গিয়ে যে তার একটা পরিবার তারা কি করবে, আর এমন যারা যারা সামিল আছে এই কাণ্ডে, এখন তো 3 জন, আরও কজন বার হতে পারে সেটা জানি না, সেটা প্রশাসন দেখবে। উদ্ধার কোথায় হয়েছে বডিটা? এটা এই বডিটা কোথায় উদ্ধার হয়েছে? বডিটা উদ্ধার হয়েছে ওই কালীপাথর সাইডে, কোন পাইপ লাইনে বলছে, এনটিপিসি দিকে আছে কালীপাথর, ওই পাইপ লাইনের সাইডে হয়েছে। বডিটা বলছে ওই বরাত করে পুঁতে দিয়েছিল, মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। তারপর আবার ওই নিয়ে যাওয়া হয় আসামি দিকে, তারা দেখিয়েছে ওর যে বাইকটা আছে বাইকটা কোন চানকে ফেলেছে সেটাও বলেছে ওই প্রশাসনকে, আমাদের আইসিকে কীভাবে মেরেছে, রটে মেরেছে মাথায়, তারপর ওই করে নিয়ে গেছে। তারপর আর এখন আমরা কিছু জানি না। আমরা চাই যারা মেরেছে তারা খোরাকান্তিভাবে সাজা হোক তাদের। এখানে যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা কোথাকার? যে মারে ওই যারা আসামি তারা হচ্ছে ভাগরাম, কি ভাগরামে থাকে। কি কারণে কি হয়েছে কিছু বলে জানো? এটা অনুমান বলতে করে পারছি না। কেউ কিছুদিন আগে মানে পুরোনো একটা রিলেশন ছিল, যার স্ত্রী ছিল, পুরোনো রিলেশন ছিল মোটামুটি 15-20 বছর আগে। তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়িও হয়েছে, ছেলেটারও বিয়ে হয়, মেয়েটারও বিয়ে হয়, অথচ সব কিছু বন্ধ হয়নি। এই কবে থেকে 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ থেকে আবার রিলেশনটা হয়তো মেলামেশা তৈরি হয়েছে, সেইভাবে হয়তো কোনো কারণে হয়েছে। বাকিটা আমরা আর বলতে পারছি না যে কী কারণে হয়েছে। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাই যারা এই মার্ডারটা করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক, আর তাদের ফ্যামিলির দায়িত্বটা কে নেবে এখন ওইটাই, সেটা এখন ব্যবস্থা করা হোক, প্রশাসন সেটা দেখুক। প্রশাসন কি বলছে? কি প্রশাসন বলছে সেটা তো বিধানসভায় আমাদের কোনো কিছু বলে নেই, আইন নেই যে ফ্যামিলিকে দায়িত্ব আছে, দেখবো এ করবো, কিন্তু চেষ্টা করছে। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম কুমার বর্মা। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ट्रक के धक्के से एक यात्री गंभीर रूप से घायल और एक की मौत। घटना भेदुआ सोल बस स्टैंड की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार के सुबह ट्यूशन पढ़कर भेदुआ सोल बस स्टैंड में बस से उतरने के दौरान एक ट्रक ने छात्रा को धक्का दे मारा, जिसके कारण एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका छात्रा का नाम राखी चैटर्जी है, जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी और जख्मी हुई छात्रा का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने लॉरी समेत लॉरी के चालक को गिरफ्तार कर लिया। ঘটনাটা একটা বাস আসছিল, বাস দাঁড়িয়ে ছিল স্ট্যান্ডে, বাসের থেকে নেমে পড়ে ওই একটা লরি পাস করছিল, হয়তো বুঝতে পারিনি, যাই হোক সেই স্পিডের মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, একদম স্পটেড হয়ে গেছে। কত বয়স? বয়সটা আনুমানিক ওই 15-16 হবে, নামটা বলতে পারছি না এখন। কোথায় বাড়ি? এই লোকনা কোথায় যাচ্ছিল? যাচ্ছিল স্টুডেন্ট, তো মানে টিউশনে সেরে আসছিল, বাসের থেকে নেমে পড়ে হয়তো রোড ক্রস করতে গিয়েছিল। তারপরে আপনার নাম? আমার নাম সুভাষ মন্ডল। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
शिक्षक घोटाले मामले में चल रही ईडी की जांच के दौरान काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ने मोनालिसा से बनाई दूरियां। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के बैनर से मोनालिसा का नाम हटाया। यूनिवर्सिटी द्वारा अचानक से उठाए गए इस कदम पर सेमिनार के आयोजक कार्यकर्ताओं ने चुप्पी साधी, पहचानने तक से इनकार कर दिया। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की याद में यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पार्थो चैटर्जी की काफी करीबी होने की फैली खबर के बाद से पिछले 3 सप्ताह से लापता है यूनिवर्सिटी बांग्ला विभाग की HOD मोनालिसा दास। আমি জানিও না, তার ব্যাপারে তিনি এসেছেন না আসেন? আমি আসেনি, নেই আপনাদের অনলাইনে তিনি রয়েছেন? না, তো কোনো জায়গাতেই নেই। প্রথম পোস্টারে তার নাম ছিল, দ্বিতীয় পোস্টারে নামটা সরানো হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। এটা আপনি কনফারেন্স বিষয়ে কোনো কথা বলুন, আমি কথা বলবো। তো এই পোস্টারটা না, আমাদের এটা কনফারেন্সের বিষয়ে কথা বলে আমি বলবো। আপনি রিগার্ডিং কনফারেন্সে আরো কি জানতে চান আমি বলছি কনফারেন্সে। বক্তব্য যে আমরা এখানে কাজী নজরুলের তার বিদ্রোহী কবিতাকে নিয়ে আমরা 2 দিন চর্চা করতে এসেছি এবং এখানে আপনি যে নামগুলো বললেন সেই নামগুলো আমি রিসেন্ট যে ফ্লায়ার, সেই রিসেন্ট ফ্লায়ার আমি দেখিনি, আর তার কোনো রকম উপস্থিতিও এখানে ছিল না। হ্যাঁ, সেই জন্য পুরোটাই আমরা একটা একাডেমিক চর্চা করতে এসেছি। আর সেখানে মানে আপনি কি জন্য, মানে কোন কনটেক্সটে আপনি প্রশ্নটা করছেন সেটাই আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে। একজন উল্লেখযোগ্য অধ্যাপিকা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मीट योर ऑफिसर कार्यक्रम चलाई गई। इसी के तहत शनिवार की सुबह को कोकोवेन थाना में मीट योर ऑफिसर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उपस्थित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC अभिषेक गुप्ता, सर्कल इंस्पेक्टर अंजन राय, थाना प्रभारी संदीप देव सहित IC मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भी इलाके के समाज सेवी लोगों को बुलाया गया था और मीट योर ऑफिसर प्रोग्राम के तहत लोगों को जानकारी दी गई कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। DC अभिषेक गुप्ता ने भी कई बातें कही। আজকে তো আপনারা জানেন পুরো কমিশনারেটে মানে আমার পুলিশ কমিশনার সাহেব একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিল, উদ্যোগ নিয়েছিল মিট ইউর অফিসার প্রোগ্রাম। মানে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহ একটা নির্ধারিত দিন, স্যাটারডে হোক বা থার্সডে হোক, একদিন আমরা থানাতে যাই সিনিয়র অফিসাররা, আর ওই সময় যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের সাথে কথা বলি, তাদের আমার সাথে দেখা করতে পারে। তারপরে এর সাথে থানার পারফরমেন্স কীরকম আছে, অফিসারদের সাথে দেখা করা, আর অ্যাক্টিভিটিস কীরকম আছে, থানার পারফরমেন্স কী আছে, পাবলিক গ্রিভেন্সেস কীভাবে এটাই সমাধান করছে এটা আমরা দেখছি। আর এর সাথে সাথে এবারে পাবলিকের সাথে ইন্টারাকশন করা, যেরকম আজকে আপনারা দেখলেন একটা মিসিং হয়ে যাওয়ার মোবাইল, হারিয়ে যাওয়ার মোবাইল, কোকোবান থানার তরফ থেকে মানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি আমরা মিসিং মোবাইল ফেরত দেবো। আজকে 32টা মোবাইল আমরা ফেরত দিচ্ছি। এটা কিছু দিন আগে থেকে মিসিং হয়েছিল বাস স্ট্যান্ড থেকে বা রেলওয়ে স্টেশন থেকে, সেটা আজকে দেখে রিটার্ন করা হয়েছে। এরকম আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে একটা মিট ইউর অফিসার प्रोग्राम করছি। আজকে কোকোবানে এটা আছে। वहीं इस कार्यक्रम के तहत इलाके के 20 लोगों को मोबाइल रिकवरी कर मालिकों के हाथों सौंप दिया गया। मोबाइल मिलने से लोगों में खुशी देखने को मिली। বলছি কবে মোবাইল হারিয়েছিল? 25 ফেব্রুয়ারি 2022 তারিখে দুর্গাপুর গার্লস হাই স্কুল থেকে ফোনটি আমার মিসিং হয়। তারপর সেখান থেকে ফোন করি মাকে এবং সাথে সাথে কোকোভেন থানায় ডায়েরি করা হয়। তো তারপর আমরা আশায় ছেড়ে দিয়েছিলাম যে ফোনটা পাবো বলে, কিন্তু পুলিশ কর্মীদের তৎপরতায় আমি ফোনটা ফিরে পেয়েছি এবং আমি অত্যন্ত খুশি। আজ কোকোভেন থানা থেকে দিল? হ্যাঁ, কোকোভেন থানা থেকে দেওয়া হয়েছে। কি নাম আপনার? জয়শ্রী বিশ্বাস। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज। रोबोटिक्स का उपयोग करके घुटने बदलने की सर्जरी एक भविष्य के लक्ष्य की तरह लगती है, लेकिन यह भविष्य अब है। चिकित्सकों ने सर्जरी के दौरान रोबोटिक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मशीन की सटीक गतिविधियों पर भरोसा करते हुए उन्हें ऐसी प्रक्रियाओं में सहायता करने के लिए जो बहुत सटीकता की मांग करते हैं, जैसे कि घुटने का प्रतिस्थापन। कुछ मरीज नए रोबोटिक नो रिप्लेसमेंट सर्जरी विकल्पों के बारे में जानने पर झिझक महसूस करते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे सुरक्षित हैं और क्या इस सर्जरी से जुड़े जोखिम हैं। सच तो ये है कि रोबोटिक सर्जरी चुनने पर मरीजों को कई फायदे मिलते हैं। डॉक्टर कुणाल पटेल MBBS MS
MCH, FISJR, FISS, अपोलो क्लिनिक दुर्गापुर के सहयोग से अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप, अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई के पहले और प्रमुख अस्पताल से एक वरिष्ठ सलाहकार ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अपोलो चेन्नई दुनिया के इस हिस्से में मोको रोबोटिक्स पेश करने वाला पहला अस्पताल है और यहाँ हमारे पास डॉक्टर कुणाल रोबोटिक्स के विवरण पर चर्चा करते हैं। जिन लोग का जो डायबिटीज बीपी नहीं रहता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो एडवांटेज हम देख रहे हैं रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट में, उसमें है एक्यूरेसी। बेसिकली जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है वो एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट है। नी रिप्लेसमेंट करते क्यों है? इसीलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट लोगों को क्षय हो जाता है, हाथों में वेयर एंड टेयर होता है, घिसारा रहता है, जिसके कारण हाथों बेंड हो जाता है। आप लोग ने देखा होगा जिन लोगों को क्षय रहता है वो लोग सीधा चल नहीं पाते, उनका पैर मुड़ जाता है। तो ये सर्जरी में बेसिकली पैर सीधा होता है और जॉइंट रिप्लेस होता है। तो ये चीज़ जो है पहले हम जो कन्वेंशनली करते थे वो अच्छा होता था, हर जगह होता है, बट रोबोटिक्स से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के श्री दुर्गा विद्यालय के कक्षा एकादश श्रेणी छात्रों ने नियमित क्लास चलाने की मांग पर स्कूल प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांग है कि हम लोगों के नियमित क्लास जारी करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। काफी मशक्कत के बाद स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों को समझा बुझाकर आंदोलन समाप्त करवाया। साथ ही उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि नियमित क्लास चले, इसका प्रबंधन जल्द ही कुछ करेगी। इसके अलावा स्कूल के भारप्राप्त प्रधान शिक्षक अशोक वर्मा एवं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास निरंतर जारी है। बच्चों को हम कहते हैं कि सरकार तुमको इतना अच्छा से पढ़ाई का सुविधा दिया है, किताब दे रहा है, कॉपी दे रही है, ड्रेस दे रही है, खाना दे रही है, उसके बाद इस पढ़ाई नहीं पढ़ता है तुमको। आज मुख्य रूप से क्या समस्या था? 3 दिन लड़का और 3 दिन लड़की का पढ़ाने का हम लोग सभी टीचर मिलकर निर्णय लिए थे। इस निर्णय में ठीक ही चल रहा था। कुछ लड़के आकर जैसे ही हम आए 10:15 पर बोले कि सर हम लोग को रेगुलर क्लास चाहिए। अनाउंसमेंट के बाद ही ये बात हुआ। स्कूल है अभी तक है बॉयज़ का। अच्छा, 11-12 इसलिए कर दिए क्योंकि संख्या जो है लड़की का भी ज़्यादा है और लड़का का भी ज़्यादा, 224 है। हाँ। और टीचर को पढ़ाने में असुविधा होती है, तो बोला भाई ऐसा करो, हम टीचर लोग से विचार विमर्श कर। टीचर कितना है? 12 टीचर। और सेक्शन हमारा हो गया 5 का 1, 6 का 2, कुल मिला के स्टूडेंट है 1300 के लगभग। 1300 के सेक्शन। सर क्लासरूम तो अवेलेबल है? क्लासरूम अवेलेबल है, क्लासरूम अवेलेबल है। क्लासरूम अवेलेबल, तो टीचर नहीं है हमारे पास। जानकारी दिए हैं हम लोग ऑफिशियली जानकारी, जो कंसर्न ऑफिस कितना दिन पहले साल देते हैं, इस साल भी दिए हैं। कितना सालों तक मतलब देते गए? ताकि हम तो ये 2 साल तो कोरोना में चला गया, इस साल से हम हैं, आज हमको लगता है 5-6 साल से ही चल रहा है ये। अभी तक नियुक्ति नहीं? जो टीचर थे वो ट्रांसफ़र हो गए, हिंदी के टीचर भी ट्रांसफ़र हो गए और वो जगह फाँका रह गया। एजुकेशन के टीचर चले गए, जगह फाँका रह गया। आज के परिस्थिति में हम वर्तमान दौड़ते दौड़ते कल जमा हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस की। मिलेगा परमिशन तो इन्वायरमेंटल चलेगा, लेकिन एडमिशन के समय ही हम बोल दिए थे बच्चों को, देखो बाबू ये परिस्थिति है, सोच समझ कर एडमिशन लो, तो लेना ही पड़ेगा। एडमिशन सामाजिक चीज़ है ना, पढ़ाई है, लेना ही पड़ेगा। लेने के बाद हम लोग यही निर्णय किए कि 3 दिन लड़की को पढ़ाएंगे, 3 दिन लड़का को। टीचर बोले कि हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं और टीचर लोग वेल क्वालिफाइड, सब अच्छा से पढ़ाते हैं। सर साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम है क्या? ओनली आर्ट्स है? 135 लड़के का बैठने का जगह है आर्ट्स में, आज हम 224 ले रहे हैं। तो ये दिए ना। अच्छा, 50-50 करने के बाद बैठा रहे हैं फिर हम। तो संभव ना दाबी अभी तो देखिए बच्चा है, वो तो क्यों दावी कर रहा है वो तो आप ही लोग बता सकते हैं, बच्चा ही बता सकते हैं। ये टीचर लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कि आज पढ़ा रहे हैं उसी विषय को, फिर लड़का को उसी विषय को पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करके कोर्स कंप्लीट करने के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं हमारे नहीं पा रहे हैं ये हम, क्योंकि शिक्षक नहीं है हमारे पास। यदि आज 10 टीचर हमारे पास, 12 टीचर हमारे पास अवेलेबल रहता एक्स्ट्रा, तो हम सेक्शन करके बैठाते दे सकते थे।
आई काउंसिलर मैम आई थी नेहा मैम, वो बोली कि ना बच्चों बात तो सही है, हम लोग कुछ करते हैं टीचर के। मिनिमम सर कितना टीचर हो जाने से मतलब क्लियर हो जाएगा ये समस्या? ये समस्या कम से कम अभी 6 टीचर रहेगा तो हम 11-12 को कंप्लीट केवल करेंगे। अच्छा, केवल 11-12। आज हमारा पासपोर्ट के टीचर को हमको 11-12 में पढ़ाना पड़ेगा। कुल कितना शिक्षक? दूसरी ओर कला विभाग में कक्षा एकादश में इस वर्ष 224 छात्र हैं। छात्रों का कहना है कि प्रत्येक सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही कक्षा चलती है। ऐसे में अनियमित पढ़ाई से हम लोग पिछड़ रहे हैं। कक्षा में लगे 3 पंखे में 2 पंखे खराब है। काफ़ी गर्मी के कारण पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक से शिकायत करने पर उल्टा उनका कहना है कि छात्रों ने ही पंखा तोड़ा है एवं छात्रों को ही गर्मी में रहना होगा। वहीं इन सभी आरोपों को लेकर स्कूल के ही एक शिक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी के समय हुए अनियमितता के कारण विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित हुआ है। दुर्गा विद्यालय में पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग का स्कूल में बोला गया कि एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लड़का लोग का चाप पड़ा इधर उधर से। हाँ, तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग समझ सकते हैं। तो बोले हैं कि हम लोग हल्ला चिल्ली करके नहीं पढ़ा सकते, सबको किसी को भी नहीं पढ़ा सकते। फिर उसके बाद हम लोग को बोला गया कि 3 दिन लड़की आएगी, 3 दिन लड़के आएंगे, तो हम लोग उसको भी रेडी हो गए। हाँ, बट हम लोग का पहला पीरियड पढ़ा हो रहा है, एमके सर नाम के हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं। हाँ, और बाकी बात कोई टीचर किसी को कोई मतलब ही नहीं है क्लास से, हम लोग कोई क्लास में आता ही नहीं है। हाँ, और लड़के लोग जाए बाहर जाए या कुछ भी करे। हाँ, लड़के लोग इधर उधर घूरे, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी चल जाए घूरने के लिए, किसी को कोई देखा ही नहीं जाता है। हाँ, तो मान लें हम लोग लड़के लोग तो बनवास होते ही हैं। हाँ, हर एक लड़के बनवास होते हैं, हम काहे बोलेंगे हम अच्छे हैं। हाँ, ऐसे कर करके फिर जाकर रेगुलर हो रहा है। हम लोग का 15 से 20 दिन क्लास हो चुका है लग रहा है हमको। हाँ, बट एक दिन भी क्या बोलते हैं इंग्लिश का ना कोई एडुकेशन का जो टीचर है ही नहीं, ज्योग्राफी का भी टीचर नहीं आते हैं, सब आते हैं रेगुलर, बट कोई पढ़ाता ही नहीं है, खाली हिंदी छोड़ के। आज घटना क्या हुआ? आज हम लोग क्या बोलते हैं ऊपर वाला रूम में हम लोग को बैठाया जाता है, उसमें बहुत सारे पंखे, गर्मी नहीं लगता, चारों तरफ से हवा था, खिड़की खुला हुआ रहता है। आज हम लोग को कोना वाला रूम में बैठा दिया गया, पूरा गर्मी है रूम में, चारों तरफ से पैक है, और उसमें भी 3 पंखे हैं। 3 पंखे में सब पंखा खुला हुआ है, और 3 पंखे में से एक पंखा वो भी कोना में है, वो चलता है खाली। हाँ, बाकी बात 2 पंखा ही खराब है, 2 पंखा खराब है। हम लोग बोले सर को, तो बोलता है ना तुम ही लोग तो मार के तोड़ा है, तुम ही लोग तो सब ब्रेज तोड़ता है। अगर कोई भी कुछ करेगा तो हम लोग का 11-12 का ही नाम आता है। हाँ, हम लोग कितना बार सर बोले कि सर हम लोग 5 क्लास से सर यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे? तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम ही लोग ऐसा किया, तुम लोग समझो अपना, तुम लोग से सब भरपाई करेंगे। कौन क्लास से पढ़ते हो तुम? सर हम लोग 11th क्लास से हैं। अभी बोला जा रहा है स्कूल में क्लास नहीं होता है। हाँ सर, क्लास होता ही नहीं है एकदम, पहला पीरियड खाली क्लास होता है बस, उसके बाद सिर्फ क्लास होता ही नहीं है। तुम लोग कुछ भी करो, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। कितना लड़का लोग, कोई लड़का इधर घूर रहा है, कोई लड़का कुछ कर रहा है, किसी को कोई अथी ही नहीं है। तुम लोग सर को पूछा कि क्लास लेने क्यों नहीं आते आप लोग? सर को लोग को बोले हैं, तो जानते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस आके बार बार बोलते हैं सर को कि सर हम लोग क्लास करवाइए, तो प्रिंसिपल हम लोग को बोलता है कि जो टीचर का पीरियड है ना, वो टीचर को जाके बोलो कि वो आएंगे। तो क्या हम लोग क्या नौकर है कि नहीं? कौन टीचर नहीं आता है? कौन, क्या नाम है उनका? सर नहीं आते हैं, और क्या बोलते हैं अंजलि मैम कभी कभी आती है, वो भी नहीं आती है ठीक से। अजय सर भी नहीं आते, ज्योग्राफी के टीचर है। हाँ, ऐसे टीचर सब नहीं आते। प्रिंसिपल का नाम क्या है? एजुकेशन का तो टीचर ही नहीं है हम लोग का स्कूल में। कितने स्टूडेंट तुम लोग? वहीं खबर पाकर वार्ड नंबर 88 की पार्षद नेहा साव विद्यालय पहुंचकर विद्यालय के भार प्राप्त प्रधान शिक्षक अशोक वर्मा से बातचीत कर बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए वह आसनसोल नगर निगम के मेयर से आवेदन कर समस्या का समाधान का मांग करेगी। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे टीचर्स का है। टीचर अवेलेबल नहीं है, जितने स्टूडेंट हैं उसके कंपेयर में टीचर्स काफ़ी कम है, जिसके लिए कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाता है। डिवाइड कर दिया गया है, 3 दिन लड़कियों का, 3 दिन लड़कों का, उस हिसाब से पढ़ाई होता है। तो लड़कों लोगों को भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, लेकिन टीचर्स का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रहा। तो इसको हम लोग सोचे हैं, टीचर से बात हुई है, प्रिंसिपल सर से बात हुई है, हम लोग सोचे हैं कि इसको देखते हैं ऊपर लेवल में, जिससे भी होता बातचीत करके हम लोग टीचर्स का जितना जल्द से जल्द हो व्यवस्था करने का कोशिश करते हैं। देखिए, सभी स्कूल में है, लेकिन वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो जैसे कि मैं इस वार्ड की काउंसिलर हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, और मैं भी एक स्टूडेंट थी, मैं भी पढ़ के इस जगह पे आई हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि लड़के लोग अच्छे से पढ़े, इन लोगों का भी कंटिन्यू क्लास हो। तो मेरे से जो बन पड़ेगा टीचर्स के लिए, वो हम देखते हैं, बात करते हैं, टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, मेरे से जो बन पड़ेगा वो हम करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। टीचर्स जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ पे टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी। आपका नाम और परिचय? नेहा साव, 88 नंबर वार्ड की काउंसिलर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
श्री श्री मद्भागवत जिला अंतर्गत आसनसोल क्षेत्रे न्यूचंदा स्थाने प्रांगणे मां शीतला मंदिर सभी कोई जयकारा लगाएंगे। बोला क्या है? धन्यवाद। यहाँ का जो पूजा गुरु जी है हमका आमंत्रण देने के लिए, यहाँ का यह नौजवान लोग हैं जो बहुत अच्छा काम किया है, काम भी करते हैं बहुत अच्छा। जो आज इस जगह में मंदिर कुछ हुआ देखने में बहुत अच्छा है। सदा भाई हम लोग के अगर गर्व होगा एक अच्छा मंदिर बनाया, सामूहिक दिया जाता है। आप लोग ऐसे सामाजिक काम धार्मिक काम करते जाइए, उसके लिए हमारा जो मदद है हम जरूर करेंगे। आप लोग इनका जीवन चाहते रहेंगे। आज प्रोग्राम हम लोगों का है न्यू केंद्रा हटिया तालाब के पास में मंदिर का उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये शीतला माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा और सुबह में हम लोगों का कलश यात्रा हुआ। आपका न्यू केंद्रा हटिया तालाब से लेकर के डोबराना मोड़ होकर वहीं से हम लोग जल उठाए और वहाँ से घूमते घूमते मंदिर प्रांगण में पहुँचे और इसके बाद यहाँ पर कलश यात्रा करते हुए हमारे सुकुदा आए हुए थे, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। और अब हम लोग चले भगवान का अभिषेक करने के लिए। 24 घंटा का यहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। शाम को जागरण का भी प्रोग्राम है, शाम को पूरा रंगारंग प्रोग्राम होगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि सभी कोई पहुँचे और इस यज्ञ का, इस प्रोग्राम का आनंद उठाएं। 108 24 घंटा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ पवन कुमार पांडे। अंडा से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। केंदा एरिया के बहुला कोलियरी नॉर्थ जामबाद यूनिट में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। पहले दिन रात पाली में जब आग जलाने का संकेत मिला, प्रबंधन ने अंदर काम कर रहे सभी श्रमिकों को तत्काल सुरक्षा कारणों से ऊपर उठा लिया। उसके बाद आग वाले पैनल को सील करने के लिए काम शुरू कर दिया, लेकिन आग लगने से अधिक गर्मी होने लगी। इसी वजह से स्पोर्टिंग का काम नहीं हो पाया। उसके बाद घटना की जानकारी DGMS को दी गई। DGMS अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आग लगे स्थल का मुआवजा किया और खदान का सारा काम बंद कर दिया। चौथे दिन आग बढ़ने से अंदर कार्बो मोनोऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ी। फैन के रास्ते गैस बाहर निकल रही है। इस स्थिति के कारण खदान के आसपास रहने वाले सभी श्रमिकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षा कारणों से हटा लिया गया।
इधर घटनास्थल पर महाप्रबंधक केंदार राजकुमार और महाप्रबंधक रेस्क्यू एस दलपति, एजेंट दिनेश शर्मा, सिदुली ग्रुप ऑफ माइंस के एजेंट आरकेपी सिंह, एजीएम ए गंगोपाध्याय तथा अन्य अधिकारी मिलकर बार होल कर अंदर लिक्विड नाइट्रोजन देने की तैयारी की जा रही है। बोरहोल के लिए रियल जामबाद बालू बंकर के आसपास बोरहोल की तैयारी की जा रही है। घटनास्थल पर पांडवेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, एसीपी उमर अली मुल्ला, सीआई बी पिंटू साहा, थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी, आईसी बनबहाल देवाशीष सुफर पहुंचकर स्थानीय लोगों को आसपास के इलाके से हटाया। के आसपास के भी इस्तेमाल ना करें। एक विशेष सूचना, बहुला कोलियारी प्रबंधन की ओर से बहुला कोलियारी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि वे कोलियारी के सभी खुले मुहां के आसपास उपस्थित न रहे। नॉर्थ जामबाद पीठ के अंदर कोयला में लगी आग के कारण सुरक्षा। आप लोगों को भी निकाल दिया गया? हाँ। आप लोग को क्वार्टर दिया कहीं आप लोगों को? ना क्वार्टर नहीं मिला है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो इधर रोड पर आके खड़ी है। फैमिली सब लेकर के, बच्चा बच्चा सबको? फैमिली भी निकल के आ गया बाहर, दूसरा घर में है। तो क्या बोला मैनेजमेंट? आप लोग मैनेजमेंट क्या बोला? घर खाली कीजिए। तो कहीं देगा खबर आप लोगों को क्वार्टर दिया? घर की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। आप किस में ड्यूटी करते हैं? हम लोग बिजली हेल्पर में ड्यूटी करते हैं। क्या नाम आपका? अवधेश सिंह। रहते हैं? हाँ, चाय दुकान है मेरा। कितना दिन से है? कम से कम 10 साल से 20 साल से। अभी क्या बोला मैनेजमेंट की दुकान खाली करके बाहर निकल जाओ? हाँ, दुकान में अभी लॉक करवा दिया है। दुकान बोला कि अभी गैस कहीं भी विस्फोट हो सकता है, तुम लोग अभी बंद रखो दुकान। सब लोग डरे हुए हैं पूरा ना? हाँ, पूरा डरे हुए हैं। हम लोग गुजर बसर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या नाम आपका? कमल राजवंशी। आप लोग सब यहीं रहते हैं बगल में, ताना के बगल में? तो सुने गैस भर गया, आप लोगों को हटा रहा है? हाँ, घुटन महसूस हो रहा है, बेचैनी भी है, गंद भी आ रहा है। 4 दिन से मैनेजमेंट का लापरवाही है। अभी मैनेजमेंट क्या बोला आप लोग? हट जाने के लिए बोला? आप लोग कहूँ जाइए अभी कुछ दिन के लिए। कोई क्वार्टर वाटर में देता नहीं, कुछ नहीं, खाली हटने बोलता। तो महसूस कैसे कर रहे हैं आप लोग? अभी बहुत डर महसूस कर रहे हैं? डर महसूस कर रहे हैं, बहुत भयावना है स्थिति, क्योंकि माहौल ऐसा सब जगह का यहाँ बना हुआ है। ये कब से ऐसा हुआ है? 4 दिन हो गए। आपका नाम क्या हुआ? अनुज पांडे। बताइए आप आकर के क्या देखें पर और क्या व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ का जो रहने वालों का? देखिए, कोयला खदान में तो ये सब हो ही सकता है, एक लड़ाई है। तो अभी हम लोग प्रशासन पूरा एरिया जितना जनबस्ती था सबको फाका कर रहा है और इसीलिए नाइट्रोजन गैस का बंदोबस्त कर लिया, नाइट्रोजन का। तो वो आ गया, काम भी शुरू हो गया। उलूबेड़िया से बाई रोड नाइट्रोजन आएगा। हम हमारे बड़ों को बोला सीपी साहब से बात करके उसको एस्कॉर्ट दे के स्पेशल जल्दी लाने को लिए। हाँ, जितना जल्दी हो खदान में अगर नाइट्रोजन डाला जाएगा। के लिए आदमी को निकाल दिया गया डीजीपी के परमिशन से, आदेश दिया था आदमी को हटा दिया। अभी का परिस्थिति कैसा है? अभी परिस्थिति है वो वेंटिलेशन से हम लोग उसे फैन ड्रिप से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं गैस का और भेज रहे हैं एनालिसिस में। अभी लाइन कटा हुआ है, तो लाइन कटा हुआ पंखा चल नहीं रहा। ब्लास्टिंग का संभावना है, माने नीचे से नहीं, कुछ भी करने से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि पंखा बंद है, अंदर हवा नहीं जा रही। उस इलाका को फाका कर दिए क्या? हाँ, क्या बोले? जो इलाका में आदमी बस हाँ, आदमी लोगों को हम लोग हटने के लिए सेफ्टी के लिए बोल दिए हैं, आप लोग दूर हो जाइए। माइकिंग की व्यवस्था माइकिंग व्यवस्था किए हैं। चाणक्य 100 मीटर आसपास लगा दिया गया। जहाँ जहाँ ओपनिंग है, पंखा घर है, हम लोग वहाँ गार्ड लगा दिए कि आदमी लोग नहीं जाए और पब्लिक को जनाने के बताने के लिए माइकिंग की व्यवस्था की है। थाना इंचार्ज मदद कर रहे हैं, स्थानीय विधायक हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आपका शासन मदद कर रहा है। मेरा नाम अजय कुमार झा, मैनेजर। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच की ओर से शनिवार को सिटी सेंटर स्थित सीजनी हॉल में मेधावी छात्र छात्राओं को एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी, पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, दुर्गापुर एमआईसी राखे तिवारी, धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रपति पुरस्कार एवं नेपाली हिंदी हाई स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक, दुर्गापुर भाषा मंच के शिव सागर उपाध्याय, जयप्रकाश ओझा, उपेंद्र नाथ मिश्रा, सत्येंद्र कुमार तिवारी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया।
विद्या संस्था है। यह संस्था हिंदी भाषियों की नहीं है, लेकिन जिस प्रकार कमल तालाब में रहकर पानी में रहकर भी वह पानी से निकाल रहता है, उसी तरह विभिन्न राजनीतिक दल में इसके सदस्य हैं, लेकिन यह संस्था सम्मानित करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मंच पर उपस्थित है हम लोग के दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर और मेयर श्रीमती अनुपम खत्री महाशय यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जनता से परिवार महाशय यहाँ पर हमारे दो MIC उपस्थित हैं, श्रीमती राशि तिवारी और रविंदर भाई उपस्थित हैं। इसके अलावा इस मंच के संस्थापक जितने भी के मेंबर्स हैं हमारे विभिन्न स्कूलों से हिंदी माध्यम। दुर्गापुर से निमायदास का रिपोर्ट PVTV न्यूज। आबकारी विभाग वहां काकसा थाने की पुलिस ने शराब की तस्करी रोकने के लिए काकसा के शिवपुर आदिवासी पाड़ा व बागदी पाड़ा में छापेमारी कर कुछ सड़े हुए शराब बरामद किए। राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। शराब पर नकेल कसने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाए जा रहे हैं। शिवपुर आदिवासी पाड़ा और बागड़ी पाड़ा में शराब बनाने का धंधा चल रहा था। प्रशासन व आबकारी विभाग कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी सुदीप्तो मंडल ने बताया कि इन दोनों जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ सड़ी हुई शराब बरामद हुई। ওই চুলু এটা নিজেদের খাওয়ার মতো। শিবপুর বাগদিপাড়া, শিবপুর আদিবাসী পাড়া, এই দুটো জায়গাতে মানে কি মানে কোনো কিছু পাওয়া গেছে? এরকম কিছু পাওয়া যায়নি, খানিকটা অল্প পরিমাণে পচাই পাওয়া গেছে হাতের মধ্যে। সচেতন করা হয়, প্রত্যেকটা এলাকাতে সচেতন করা হয়েছে। আমরা 24 তারিখ এসে আমরা এখানে এলাকাতে মাইকিং করেছি। ঠিক আছে, আপনার নামটা? সুদীপ্ত মন্ডল। दुर्गापुर से निमायदास का रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड इलाके में स्थानीय पार्षद राजू सिंह के घर के सामने एक व्यक्ति ने दीवार पर बने TMC के प्रतीक चिन्ह पर नाली का कचरा फेंका। साथ ही आरोप है कि उसने ममता बनर्जी को भी भद्दी गालियां दी। बताया जा रहा है कि पिंटू दास नामक एक व्यक्ति नशे की हालत में था। आज आसनसोल नगर निगम में सभी पार्षदों के साथ एक बोर्ड मीटिंग थी। राजू सिंह भी उसी मीटिंग में शिरकत करने आसनसोल आए हुए थे। जब इस बात की सूचना राजू सिंह के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फोन पर दी तो वह तुरंत बैठक से निकलकर अपने वार्ड की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जो खबर दी थी वह बिल्कुल सही थी। उनके घर के पास TMC के प्रतीक पर गंदगी फेंका गया था और वह व्यक्ति तब भी ममता बनर्जी और TMC के नाम पर भद्दी गालियां दे रहा था। पहले तो उसे समझा बुझा कर वापस भेजा गया, लेकिन बाद में वह फिर वापस आया और फिर से गालियां देने लगा। आखिरकार राजू सिंह ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार पिंटू दास नामक व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि उसने यह हरकत की है। एक वाल में काटा तुम छिटा है? हाँ, कहेली छिटा? इसलिए कि हम लोग एक भी घर नहीं हुआ, एक भी नहीं बना। क्या चाहिए घर नहीं बना? जो बना रहा वो नहीं हुआ। मैंने ये जो कांड किया तुम किया तो? हाँ, दीवार में काटा छिटा है, TMC लिखा हुआ वहाँ में बैनर है। हाँ, हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? पिंटू। पिंटू हुआ। घटना कुछ नहीं, हम बोर्ड मीटिंग में थे, आके देख रहे हैं, वहाँ फ़ोन आया हमको कि हम लोग का जो दीवार लिखा हुआ है कॉर्पोरेशन वोट का समय, उस टाइम से ये लोग पीछे पड़ा हुआ है। CPM का है, BJP का हमको मालूम नहीं है, ये लोग लेकिन अगेंस्ट पार्टी करता है। और ममता बनर्जी को ये लोग गंदा गंदा गाली सब निकाल के गाली दे रहा है और भी पार्टी का लेकर बहुत सारा कुछ ये लोग ये कर रहा है। और हमारे कर्मी लोग को सबको चोर बोल रहा है, ये खुद ये लोग चोर है। ये लोग को लेकर हम बहुत बड़ा एक केस बनाएंगे और ये लोग देखेगा आने वाला समय, ये लोग समझ में आएगा कि पार्टी से लेने पंगा लेने से क्या लोग का रिजल्ट होता है, वो लोग समझ में आएगा। आपके घर के पास क्या किया वो लोग? मेरे घर के पास आके पार्टी को गाली दे रहा, ममता बनर्जी को गाली दे रहा, माँ को गाली दे रहा है। ठीक है,
गाली दे रहा है। उसका बाद से फिर हम लोग उसको समझा के, हमारा जो सीनियर है भैया लोग भी समझा के उसको घर भेजा, उसका बाद फिर गाली दे रहा है। उसका बड़ा ये पुलिस प्रशासन को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। और भी बहुत सारा बात है जो कॉर्पोरेशन वोट से चलते आ रहा है। MP वोट में भी हम लोग का साथ इस तरह का व्यवहार किया, दीवार लिखने का समय में इस तरह ही करता था। और दीवार तो देख रहे, दीवार में क्या हुआ? दीवार में देखिए कादा पादा फेंक रहा और गाली दे रहा है ममता बनर्जी का। घर में भी आके गाली दे के जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? राजू सिंह, 91 नंबर वार्ड का काउंसलर। जो किया उसका क्या नाम है? पिंटू दास। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एवं रानीगंज थाने की पहल की ओर से 2 स्वयंसेवी संस्थाओं JCI और नेस्ले इंडिया के सहयोग से रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके स्थित एक सभागार में शनिवार को कोरोना महामारी के बाद 130 असहाय गरीब लोगों की मदद के लिए 1 माह का राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। इस दौरान खोए हुए 28 मोबाइल फोन के मालिकों को बरामद फोन वापस करने का कार्य भी संपन्न किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, DCP सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप सुरेश, DC ट्रैफिक आनंद रॉय, ACP सेंट्रल 2 श्रीमंत बैनर्जी, रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप्तो दास गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप सुरेश ने संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस एवं नागरिकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा प्राप्ति कार्यक्रम के तहत इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एवं उन्होंने और भी कई बातें कहीं। पुलिस इन सब बातों को ध्यान में रखकर 130 जरूरतमंदों को राशन प्रदान की है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके अलावा रानीगंज थाना अंतर्गत विभिन्न अंचलों में गुम हुए 28 लोगों के मोबाइल को भी इस कार्यक्रम के तहत वापस किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी पुलिस के द्वारा इस तरह का सेवामूलक कार्य जारी रहेगा। বেশ কিছু পাওয়া যাওয়া মোবাইল, কিছু চুরি গেছিল আমরা ধরেছি, কিছু হারিয়ে গেছিল আমরা পেয়েছি, আমরা উদ্ধার করেছি। এবং আমরা চাইছি তার মধ্যে কিছু মাননীয় SCP সাহেব, মাননীয় ADC সাহেব, মাননীয় SCP সাহেব এবং নেসলে ইন্ডিয়া যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের হাত দিয়ে তাদের অরিজিনাল মালিকের হাতে সেই মোবাইলটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ফিরিয়ে দেব। আমি এটা নাম করে রাখছি আপনারা দয়া করে একটু JCI चुरकुंडा बढ़ाकर के थ्रू, JCI इंडिया के थ्रू JCI चुरकुंडा बढ़ाकर और नेस्ले के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये CSR के थ्रू, पुलिस कमिश्नर के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाता है CSR फंड के थ्रू। और इसमें 250 पैकेट राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रानीगंज PS के अंदर में जो भी जितने भी आते हैं उसमें। यही है कि कोविड के बाद बहुत सारे फैमिली अभी भी जो उसमें कोविड से बाहर निकल नहीं पाए हैं, उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ग्रोसरी किट, जो अपने फैमिली मेम्बर को उसमें राशन दिए सकते। दिनों में ये स्कोप चल रहा है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आते जाएगा वैसे हम लोग और करते जाएंगे। ऑलरेडी पहले हम लोग 750 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो आसनसोल नॉर्थ थाना, साउथ थाना और जामुरिया PS के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मैं JC राकेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट JCI चुरकुंडा बढ़ाकर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।